Teachers to develop as stray dog inspectors. This bizarre order from the Education Department in Poonch has triggered a furor as educationists are calling it outrageous, insensitive and at the same time order from people who do not understand the dignity that is connected with this particular noble profession. According to this order, teachers, in fact principals and schools across Poonch have been directed by the CEO that they should pick one teacher as nodal officer and he will deal with the stray dog menace. Report it and also coordinate with municipality and other government departments to ensure that people remain safe and there are no dog bite incidents. At the same time, spread awareness about the dog menace. Clearly, teachers also outraged, though there are many who, because of the government job restrictions, are not coming out publicly, but they want that this order should be immediately rolled back and such orders should not come out because teachers, it's a sensitive profession, it is a dignified profession, and more importantly, they are not equipped, they do not have the expertise to deal with such a matter. And when you have departments like the municipality, animal husbandry and others, why to drag the education department into this and why to really double up the pressure on the teachers who are already handling its sensitive education department, and this should not be something that should have come out at the very first place. So, a lot of criticism as far as this order is concerned, and post that though there has been no clarification from the government, but clearly the government or the education department in this case has now come under pressure with this widespread condemnation and criticism from all quarters. Well, I strongly condemn the outrageous order issued by the CEO Poonch. This directive is nothing less than an insult to the entire teaching fraternity, I must say. We all know that teachers are nation builders, educators, mentors and guides to our children. And this ridiculous order assigning them the responsibility of nodal officers for stray dog management, this is totally unacceptable. This is not accepted at all. This is a completely obnoxious order and we should be withdrawn as early as possible. This is an insult to entire teaching fraternity. And I must say, I'm just wondering how this CEO Saab has issued such an obnoxious order. He should know that he has been taught by a teacher. And this is outrageous. This is outrageous. This is disgusting order. And I must say this order should be immediately withdrawn. And yes, if authorities are not able to, curb this, stray dog menace, they should take task to the concerned departments. Let animal husbandry and municipality take the job. It is their job to take the, this step ahead and make sure that stray dogs data should be submitted to the concerned. Why a teacher? Why a teacher? This is an insult. Not only to teacher, this is an insult to entire community. And I personally outrightly, don't, encourage this order. And CEO Saab must immediately withdraw this order. And I request authorities that such orders should, in future, such orders should be, issued very carefully, keeping the view, the dignity, the respect and honor of the teachers' fraternity. Thank you so much. जी पर सब एक ऑर्डर निकला है जिसमें टीचर जो है इसको एक मतलब बेहतरीन शोभा माना जाता है, उनको बताया गया कि जो ये स्ट्रे डॉग से उनको आपको मॉनिटर करना है, क्या कहेंगे आप? ये बड़ी शर्म वाली बात है कि जिस प्रोफेशन को क्रीम प्रोफेशन ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, यानी कि रहबर, कौम का रहबर, एक टीचर, उनको अब ये काम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स निकाले हैं, मगर जब तक गवर्नमेंट का इसका अपना हाथ नहीं होगा तब तक ग्राउंड लेवल पे ये ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे। किसी हद तक अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे टीचर्स पिछले 5-10 सालों में अपने फराइज को पूरी तरह से अंजाम नहीं देते हैं, यानी कि जी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, मगर इतना भी टेढ़ा नहीं करना पड़ता है कि मतलब एक इज्जत वाले प्रोफेशन पे आंच आ जाए। एक मतलब अगर ये वाला इस तरह से मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करेगी और एक रहबर, कौम के रहबर को ये वाला काम सौंपेंगे, तो मतलब इससे बहुत शर्म की बात और बहुत मतलब धिक्कार की बात कोई नहीं होगी। तो
हम इस चीज की मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर एक कौम का रहबर होता है, वही से एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट जन्म लेता है। जब वो कौम की रहबरी करते हैं, जब वो एजुकेशन देते हैं बच्चों को, तभी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स निकल आते हैं। हाँ, इसी तरह से अगर हम दूसरी बात करें, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, वहां पर इसी रिगार्डिंग वहां पर टीचर्स, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, मगर टीचर्स की बहुत कमी है। हाँ, अगर हम डेवलपमेंटल एरिया में, सिटीज की बात करें, यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत कम, बहुत ज्यादा कम स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक स्कूल में 12 टीचर्स है और वहां पे 6 स्टूडेंट्स है। मगर इन टीचर्स को भी अपने लेवल पे थोड़ा सीरियस होना चाहिए, जो इनके फराइज है उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना चाहिए पूरी तरह से। हाँ, इनको आप सीधा करो टीचर्स को, मगर इतना भी सीधा मत करो कि ये टूट जाए। क्या ये एक इंसल्ट है इस शोबे पे? सीधी सी बात है, इंसल्ट है। इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है? एक कौम के रहबर को आप इस तरह का काम दोगे तो मतलब रहबरी कहाँ करेंगे? वो रहबर नहीं रहेगा, वो तो एक मतलब चौकीदार बन जाएगा। क्या इस पे बच्चों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि टीचर को तो इंसल्ट हुई ही है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे वो टीचर? सीधी सी बात है, बच्चे मतलब अगर ये वाला काम टीचर्स को आप दोगे तो बच्चों में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि आजकल मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की एक मतलब बुरी इमेज बन गई है बच्चों में, चाहे वो लोकल कहें, चाहे वो बच्चे इस रिगार्डिंग कहते हैं कि टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते। अगर अब ये काम टीचर्स को दिया जाए तो मतलब उनकी तो इमेज खराब हो जाएगी, उनकी कौम में कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो क्या आप चाहते हैं गवर्नमेंट से ये ऑर्डर विड्रॉ किया जाए? और हाँ, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, एक मतलब एक ऐसा इनिशिएटिव निकालो जो अगर आपको ग्राउंड लेवल पे मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको मतलब किसी भी तरह से मतलब जब्त करना है, किसी भी तरह से उनको मतलब सेफ रखना है, लोगों को उनसे सेफ रखना है, कोई ऐसा इनिशिएटिव निकालो। हाँ, अगर आप पनिशमेंट दे रहे हो टीचर्स को क्योंकि वो अपनी जगह पे किसी जगह पे टीचर्स अपने फराइज को पूरी तरह से अंजाम नहीं देते, हाँ, उसके लिए भी एक ऑर्डर निकालो। हाँ, निकालते भी है, मगर इस तरह से ये करना ये बहुत बुरी बात है। कहीं ना कहीं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एसएमसीज पे, जैसे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू म्युनिसिपल का, उनको ये स्टरलाइज ऑपरेशन, ये स्ट्रीट डॉग पे करनी चाहिए। हाँ, उनको तो ये उनका तो काम ही है, उनको मतलब ऑलरेडी उनके लिए ये उनका जो पोस्ट होता है, उनकी जो मतलब काम होता है, वो उनके लिए चुने जाते हैं। उनसे अगर कराओगे तो वो सही बात है, वो इस चीज को सीरियस नहीं लेंगे। क्योंकि टीचर्स जब रिक्रूटमेंट टीचर्स की हो जाती है, उनको यही होता है पता कि हमें पढ़ाना है बच्चों को। हाँ, अगर एकदम से वो स्ट्रीट डॉग्स को मतलब स्ट्रीट डॉग्स के पीछे भागेंगे तो वो तो मतलब ज़हनी शिकार बन जाएंगे टीचर। वो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे स्कूल में? उस्ताद का जो पेशा है वो इस्लाम में पैगम्बराना पेशा माना जाता है। जो कल पुनछ में ऑर्डर जारी हुआ है कि जो उस्तादों को जो काम सौंपा गया है, मैं ये कहता हूँ कि ये एक शेमफुल एक्ट है। क्योंकि उस्ताद जो है वो कौम के मेमार होते हैं। जिन ऑफिशियल्स ने भी ये ऑर्डर निकाला है उनको भी उस्तादों ने ही इस मुकाम पे पहुंचाया है। ये जो स्ट्रीट डॉग्स का मसला है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पे कोई भी काम होता है, सेंसस का काम होता है, BLOs वगैरह, जो तो भी सबसे पहले टीचर्स को ही टारगेट किया जाता है। लेकिन ये जो आप उनको काम सौंपा गया है पुनछ में, ये म्यूनसिपलिटीज का काम है। ये अगर हम उस्तादों को ये काम भी सौंपेंगे, जो उस्ताद हमारे बच्चों को निखारते हैं, तो उनको ये काम भी सौंपेंगे, ये दरअसल उनके साथ नाइंसाफी होगी। मैं इस चीज़ को मजम्मत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये उस्तादों के साथ सरासर नाइंसाफी है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आपको लगता है गवर्नमेंट को ये ऑर्डर नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे जो ऑर्डर्स है, ये सोच समझ के ऐसे ऑर्डर्स या ऐसे कवानीन सोच समझ के बनने चाहिए। एक उस्ताद जिसको लोग इज्जत से देख रहे हैं, लेकिन आज उनकी इज्जत नीलाम पे है। Where Dumisar Gol in Kulgam and Tariq Loan in Srinagar. Meet Farid for India Today.